ہوگی کل جنرل پرویز مشرف نے ایک بڑا ہی تہلکہ خیز انٹرویو دیا ہے جس میں صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی مدد پاکستان سے فرار ہونے میں جنرل راحیل نے کی تھی۔ میرا ایک بہت ہی سادہ سا سوال ہے کہ اس ملک کے اندر جو شیدہ میدہ ان کے اوپر تو قانون لاگو ہوتا ہے، لیکن طاقتور کے اوپر جو ہے وہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنرل مشرف ہوں یا وردی میں ملبوس کوئی بھی آدمی ہو، وہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ پیسہ لوٹنے کے لیے جو بڑے نام ہیں وہ طاقتور ہیں، جو چھوٹی مچھلی ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے۔ تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کب بدلے گا؟ ایسا قانون جو کہ انصاف دے جو غریبوں کے لیے بھی ہو، جو امیروں کے لیے بھی ہو، اور ایک ایسی ریاست، فلاحی ریاست ہو جس کے اندر کسی امیر غریب کی تمیز نہ ہو۔ تو کیا جنرل مشرف کو فرار ہونے میں جنرل راحیل نے واقعی مدد کی تھی، یا صرف ہم نعرے لگاتے ہیں کہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے اندر قانون سب کے لیے برابر ہے؟ کیوں دی تھی مدد؟ یہ آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اس سے پہلے تو بس خبریں تھیں، افواہیں تھیں اور ہم صرف تجزیے کرتے تھے، لیکن اب تو جنرل مشرف نے کہہ دیا کہ عدالتوں پہ انفلوئنس ہو سکتا ہے۔ انہوں نے عدالتی نظام پہ بہت بڑا سوال اٹھا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ حکومت کے ذریعے سے جو ہے جنرل راحیل نے دباؤ ڈالا، جس کی بنیاد پہ ان کے کیسز ودرا کیے گئے۔ سوال یہ بھی ہے کہ چودھری نثار کا بس صرف ایان علی پہ چلتا ہے، جنرل مشرف پہ نہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا ECL سے نام نکالتے ہوئے کہ ان کو واپس لائیں گے۔ وہ لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ وزیر اعظم ہاؤس سے بھی تردید ہوئی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اس معاملے کے اوپر بات کرنا، تاکہ پاکستان کے جو عام شہری ہیں ان کو پتہ چلے کہ انصاف، قانون، آئین کی دھجیاں کس طرح اڑائی جاتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج نیوز پہ 8 بجے ہم اس پہ بات کریں گے۔ قمر زبان قاہرہ ہمارے ساتھ ہوں گے، عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج کے دن کی جو بڑی خبر ہے وہ تو آپ نے دیکھی ہوگی۔ کل جنرل پرویز مشرف نے ایک بڑا ہی تہلکہ خیز انٹرویو دیا ہے جس میں صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی مدد پاکستان سے فرار ہونے میں جنرل راحیل نے کی تھی۔ میرا ایک بہت ہی سادہ سا سوال ہے کہ اس ملک کے اندر جو شیدہ میدہ ان کے اوپر تو قانون لاگو ہوتا ہے، لیکن طاقتور کے اوپر جو ہے وہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنرل مشرف ہوں یا وردی میں ملبوس کوئی بھی آدمی ہو، وہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ پیسہ لوٹنے کے لیے جو بڑے نام ہیں وہ طاقتور ہیں، جو چھوٹی مچھلی ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے۔ تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کب بدلے گا؟ ایسا قانون جو کہ انصاف دے جو غریبوں کے لیے بھی ہو، جو امیروں کے لیے بھی ہو، اور ایک ایسی ریاست، فلاحی ریاست ہو جس کے اندر کسی امیر غریب کی تمیز نہ ہو۔ تو کیا جنرل مشرف کو فرار ہونے میں جنرل راحیل نے واقعی مدد کی تھی، یا صرف ہم نعرے لگاتے ہیں کہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے اندر قانون سب کے لیے برابر ہے؟ کیوں دی تھی مدد؟ یہ آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اس سے پہلے تو بس خبریں تھیں، افواہیں تھیں اور ہم صرف تجزیے کرتے تھے، لیکن اب تو جنرل مشرف نے کہہ دیا کہ عدالتوں پہ انفلوئنس ہو سکتا ہے۔ انہوں نے عدالتی نظام پہ بہت بڑا سوال اٹھا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ حکومت کے ذریعے سے جو ہے جنرل راحیل نے دباؤ ڈالا، جس کی بنیاد پہ ان کے کیسز ودرا کیے گئے۔ سوال یہ بھی ہے کہ چودھری نثار کا بس صرف ایان علی پہ چلتا ہے، جنرل مشرف پہ نہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا ECL سے نام نکالتے ہوئے کہ ان کو واپس لائیں گے۔ وہ لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ وزیر اعظم ہاؤس سے بھی تردید ہوئی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اس معاملے کے اوپر بات کرنا، تاکہ پاکستان کے جو عام شہری ہیں ان کو پتہ چلے کہ انصاف، قانون، آئین کی دھجیاں کس طرح اڑائی جاتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج نیوز پہ 8 بجے ہم اس پہ بات کریں گے۔ قمر زبان قاہرہ ہمارے ساتھ ہوں گے، عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج کے دن کی جو بڑی خبر ہے وہ تو آپ نے دیکھی ہوگی۔ کل جنرل پرویز مشرف نے ایک بڑا ہی تہلکہ خیز انٹرویو دیا ہے جس میں صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی مدد پاکستان سے فرار ہونے میں جنرل راحیل نے کی تھی۔ میرا ایک بہت ہی سادہ سا سوال ہے کہ اس ملک کے اندر جو شیدہ میدہ ان کے اوپر تو قانون لاگو ہوتا ہے، لیکن طاقتور کے اوپر جو ہے وہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنرل مشرف ہوں یا وردی میں ملبوس کوئی بھی آدمی ہو، وہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟
पैसा लूटने के लिए जो बड़े नाम हैं वो ताकतवर हैं, जो छोटी मछली हैं उनको पकड़ा जाता है। तो इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून कब बदलेगा? ऐसा कानून जो कि इंसाफ दे, जो गरीबों के लिए भी हो, जो अमीरों के लिए भी हो, और एक ऐसी रियासत, फलाही रियासत हो जिसके अंदर किसी अमीर गरीब की तमीज़ ना हो। तो क्या जनरल मुशर्रफ को फरार होने में जनरल राहील ने वाकई मदद की थी, या सिर्फ हम नारे लगाते हैं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर है? क्यों दी थी मदद? ये आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इससे पहले तो बस खबरें थी, अफवाहें थी और हम सिर्फ तज्जिए करते थे, लेकिन अब तो जनरल मुशर्रफ ने कह दिया कि अदालतों पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। उन्होंने अदालती निज़ाम पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। इसके साथ साथ वो फरमाते हैं कि हुकूमत के ज़रिए से जो है जनरल राहील ने दबाव डाला, जिसकी बुनियाद पर उनके केसेस विदड्रॉ किए गए। सवाल ये भी है कि चौधरी निसार का बस सिर्फ अयान अली पे चलता है, जनरल मुशर्रफ पे नहीं। और उन्होंने वादा किया था ECL से नाम निकालते हुए कि उनको वापस लाएंगे। वो लाएंगे या नहीं लाएंगे? वज़ीर आज़म हाउस से भी तरदीद हुई है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मामले के ऊपर बात करना, ताकि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनको पता चले कि इंसाफ, कानून, आइन की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई जाती है। आप हमारे साथ रहिएगा। आज न्यूज़ पे 8 बजे हम इस पे बात करेंगे। कमर ज़बान कायरा हमारे साथ होंगे, आरिफ अलवी साहब हमारे साथ होंगे और जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के दिन की जो बड़ी खबर है वो तो आपने देखी होगी। कल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बड़ा ही तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है, जिसमें साहब फरमाते हैं कि उनकी मदद पाकिस्तान से फरार होने में जनरल राहील ने की थी। मेरा एक बहुत ही सादा सा सवाल है कि इस मुल्क के अंदर जो शीदा मीदा, उनको तो, उनके ऊपर तो कानून लागू होता है, लेकिन ताकतवर के ऊपर जो है वो कानून लागू नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जनरल मुशर्रफ हो या वर्दी में मलबूस कोई भी आदमी हो, वो इतना ताकतवर क्यों है? पैसा लूटने के लिए जो बड़े नाम हैं वो ताकतवर हैं, जो छोटी मछली हैं उनको पकड़ा जाता है। तो इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून कब बदलेगा? ऐसा कानून जो कि इंसाफ दे, जो गरीबों के लिए भी हो, जो अमीरों के लिए भी हो, और एक ऐसी रियासत, फलाही रियासत हो जिसके अंदर किसी अमीर गरीब की तमीज़ ना हो। तो क्या जनरल मुशर्रफ को फरार होने में जनरल राहील ने वाकई मदद की थी, या सिर्फ हम नारे लगाते हैं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर है? क्यों दी थी मदद? ये आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इससे पहले तो बस खबरें थी, अफवाहें थी और हम सिर्फ तज्जिए करते थे, लेकिन अब तो जनरल मुशर्रफ ने कह दिया कि अदालतों पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। उन्होंने अदालती निज़ाम पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। इसके साथ साथ वो फरमाते हैं कि हुकूमत के ज़रिए से जो है जनरल राहील ने दबाव डाला, जिसकी बुनियाद पर उनके केसेस विदड्रॉ किए गए। सवाल ये भी है कि चौधरी निसार का बस सिर्फ अयान अली पे चलता है, जनरल मुशर्रफ पे नहीं। और उन्होंने वादा किया था ECL से नाम निकालते हुए कि उनको वापस लाएंगे। वो लाएंगे या नहीं लाएंगे? वज़ीर आज़म हाउस से भी तरदीद हुई है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मामले के ऊपर बात करना, ताकि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनको पता चले कि इंसाफ, कानून, आइन की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई जाती है। आप हमारे साथ रहिएगा। आज न्यूज़ पे 8 बजे हम इस पे बात करेंगे। कमर ज़बान कायरा हमारे साथ होंगे, आरिफ अलवी साहब हमारे साथ होंगे और जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के दिन की जो बड़ी खबर है वो तो आपने देखी होगी। कल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बड़ा ही तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है, जिसमें साहब फरमाते हैं कि उनकी मदद पाकिस्तान से फरार होने में जनरल राहील ने की थी। मेरा एक बहुत ही सादा सा सवाल है कि इस मुल्क के अंदर जो शीदा मीदा, उनको तो, उनके ऊपर तो कानून लागू होता है, लेकिन ताकतवर के ऊपर जो है वो कानून लागू नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जनरल मुशर्रफ हो या वर्दी में मलबूस कोई भी आदमी हो, वो इतना ताकतवर क्यों है? पैसा लूटने के लिए जो बड़े नाम हैं वो ताकतवर हैं, जो छोटी मछली हैं उनको पकड़ा जाता है। तो इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून कब बदलेगा? ऐसा कानून जो कि इंसाफ दे, जो गरीबों के लिए भी हो, जो अमीरों के लिए भी हो, और एक ऐसी रियासत, फलाही रियासत हो जिसके अंदर किसी अमीर गरीब की तमीज़ ना हो। तो क्या जनरल मुशर्रफ को फरार होने में जनरल राहील ने वाकई मदद की थी, या सिर्फ हम नारे लगाते हैं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर है?
क्यों दी थी मदद, ये आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इससे पहले तो बस खबरें थी, अफवाहें थी और हम सिर्फ तज्जिए करते थे, लेकिन अब तो जनाब मुशर्रफ ने कह दिया कि अदालतों पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। उन्होंने अदालती निज़ाम पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। इसके साथ साथ वो फरमाते हैं कि हुकूमत के ज़रिए से जो है जनरल राहील ने दबाव डाला, जिसकी बुनियाद पर उनके केसेस विदड्रॉ किए गए। सवाल ये भी है कि चौधरी निसार का बस सिर्फ अयान अली पे चलता है, जनरल मुशर्रफ पे नहीं। और उन्होंने वादा किया था ECL से नाम निकालते हुए कि उनको वापस लाएंगे। वो लाएंगे या नहीं लाएंगे? वज़ीर आज़म हाउस से भी तरदीद हुई है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मामले के ऊपर बात करना, ताकि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनको पता चले कि इंसाफ, कानून, आइन की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई जाती है। आप हमारे साथ रहिएगा। आज न्यूज़ पे 8 बजे हम इस पे बात करेंगे। कबर ज़बान कायरा हमारे साथ होंगे, आरिफ अलवी साहब हमारे साथ होंगे और जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के दिन की जो बड़ी खबर है वो तो आपने देखी होगी। कल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बड़ा ही तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है, जिसमें साहब फरमाते हैं कि उनकी मदद पाकिस्तान से फ़रार होने में जनरल राहील ने की थी। मेरा एक बहुत ही सादा सा सवाल है कि इस मुल्क के अंदर जो शीदा मीदा, उनको तो उनके ऊपर तो कानून लागू होता है, लेकिन ताकतवर के ऊपर जो है वो कानून लागू नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जनरल मुशर्रफ हो या वर्दी में मलबूस कोई भी आदमी हो, वो इतना ताकतवर क्यों है? पैसा लूटने के लिए जो बड़े नाम हैं वो ताकतवर हैं, जो छोटी मछली हैं उनको पकड़ा जाता है। तो इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून कब बदलेगा? ऐसा कानून जो कि इंसाफ दे, जो गरीबों के लिए भी हो, जो अमीरों के लिए भी हो, और एक ऐसी रियासत, फलाही रियासत हो जिसके अंदर किसी अमीर गरीब की तमीज़ ना हो। तो क्या जनरल मुशर्रफ को फरार होने में जनरल राहील ने वाकई मदद की थी, या सिर्फ हम नारे लगाते हैं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर है? क्यों दी थी मदद, ये आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इससे पहले तो बस खबरें थी, अफवाहें थी और हम सिर्फ तज्जिए करते थे, लेकिन अब तो जनाब मुशर्रफ ने कह दिया कि अदालतों पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। उन्होंने अदालती निज़ाम पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। इसके साथ साथ वो फरमाते हैं कि हुकूमत के ज़रिए से जो है जनरल राहील ने दबाव डाला, जिसकी बुनियाद पर उनके केसेस विदड्रॉ किए गए। सवाल ये भी है कि चौधरी निसार का बस सिर्फ अयान अली पे चलता है, जनरल मुशर्रफ पे नहीं। और उन्होंने वादा किया था ECL से नाम निकालते हुए कि उनको वापस लाएंगे। वो लाएंगे या नहीं लाएंगे? वज़ीर आज़म हाउस से भी तरदीद हुई है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मामले के ऊपर बात करना, ताकि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनको पता चले कि इंसाफ, कानून, आइन की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई जाती है। आप हमारे साथ रहिएगा। आज न्यूज़ पे 8 बजे हम इस पे बात करेंगे। कबर ज़बान कायरा हमारे साथ होंगे, आरिफ अलवी साहब हमारे साथ होंगे और जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के दिन की जो बड़ी खबर है वो तो आपने देखी होगी। कल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बड़ा ही तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है, जिसमें साहब फरमाते हैं कि उनकी मदद पाकिस्तान से फ़रार होने में जनरल राहील ने की थी। मेरा एक बहुत ही सादा सा सवाल है कि इस मुल्क के अंदर जो शीदा मीदा, उनको तो उनके ऊपर तो कानून लागू होता है, लेकिन ताकतवर के ऊपर जो है वो कानून लागू नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जनरल मुशर्रफ हो या वर्दी में मलबूस कोई भी आदमी हो, वो इतना ताकतवर क्यों है? पैसा लूटने के लिए जो बड़े नाम हैं वो ताकतवर हैं, जो छोटी मछली हैं उनको पकड़ा जाता है। तो इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून कब बदलेगा? ऐसा कानून जो कि इंसाफ दे, जो गरीबों के लिए भी हो, जो अमीरों के लिए भी हो, और एक ऐसी रियासत, फलाही रियासत हो जिसके अंदर किसी अमीर गरीब की तमीज़ ना हो। तो क्या जनरल मुशर्रफ को फरार होने में जनरल राहील ने वाकई मदद की थी, या सिर्फ हम नारे लगाते हैं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर है? क्यों दी थी मदद, ये आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इससे पहले तो बस खबरें थी, अफवाहें थी और हम सिर्फ तज्जिए करते थे, लेकिन अब तो जनरल मुशर्रफ ने कह दिया कि अदालतों पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। उन्होंने अदालती निज़ाम पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। इसके साथ साथ वो फरमाते हैं कि हुकूमत के ज़रिए से जो है जनरल राहील ने दबाव डाला, जिसकी बुनियाद पर उनके केसेस विदड्रॉ किए गए। सवाल ये भी है कि चौधरी निसार का बस सिर्फ अयान अली पे चलता है, जनरल मुशर्रफ पे नहीं। और उन्होंने वादा किया
किया था ECL से नाम निकालते हुए कि उनको वापस लाएंगे, वो लाएंगे या नहीं लाएंगे। वज़ीर आज़म हाउस से भी तरदीद हुई है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मामले के ऊपर बात करना, ताकि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनको पता चले कि इंसाफ, कानून, आइन की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई जाती है। आप हमारे साथ रहिएगा। आज न्यूज़ पे 8 बजे हम इस पे बात करेंगे। कमर ज़बान कायरा हमारे साथ होंगे, आरिफ अलवी साहब हमारे साथ होंगे और जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के दिन की जो बड़ी खबर है वो तो आपने देखी होगी। कल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बड़ा ही तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है, जिसमें साहब फरमाते हैं कि उनकी मदद पाकिस्तान से फ़रार होने में जनरल राहील ने की थी। मेरा एक बहुत ही सादा सा सवाल है कि इस मुल्क के अंदर जो शीदा मीदा, उनको तो उनके ऊपर तो कानून लागू होता है, लेकिन ताकतवर के ऊपर जो है वो कानून लागू नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जनरल मुशर्रफ हो या वर्दी में मलबूस कोई भी आदमी हो, वो इतना ताकतवर क्यों है? पैसा लूटने के लिए जो बड़े नाम हैं वो ताकतवर हैं, जो छोटी मछली हैं उनको पकड़ा जाता है। तो इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून कब बदलेगा? ऐसा कानून जो कि इंसाफ दे, जो गरीबों के लिए भी हो, जो अमीरों के लिए भी हो, और एक ऐसी रियासत, फलाही रियासत हो जिसके अंदर किसी अमीर गरीब की तमीज़ ना हो। तो क्या जनरल मुशर्रफ को फरार होने में जनरल राहील ने वाकई मदद की थी, या सिर्फ हम नारे लगाते हैं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर है? क्यों दी थी मदद? ये आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इससे पहले तो बस खबरें थी, अफवाहें थी और हम सिर्फ तज्जिए करते थे, लेकिन अब तो जनरल मुशर्रफ ने कह दिया कि अदालतों पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। उन्होंने अदालती निज़ाम पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। इसके साथ साथ वो फरमाते हैं कि हुकूमत के ज़रिए से जो है जनरल राहील ने दबाव डाला, जिसकी बुनियाद पर उनके केसेस विदड्रॉ किए गए। सवाल ये भी है कि चौधरी निसार का बस सिर्फ अयान अली पे चलता है, जनरल मुशर्रफ पे नहीं। और उन्होंने वादा किया था ECL से नाम निकालते हुए कि उनको वापस लाएंगे, वो लाएंगे या नहीं लाएंगे। वज़ीर आज़म हाउस से भी तरदीद हुई है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मामले के ऊपर बात करना, ताकि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनको पता चले कि इंसाफ, कानून, आइन की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई जाती है। आप हमारे साथ रहिएगा। आज न्यूज़ पे 8 बजे हम इस पे बात करेंगे। कमर ज़बान कायरा हमारे साथ होंगे, आरिफ अलवी साहब हमारे साथ होंगे और जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के दिन की जो बड़ी खबर है वो तो आपने देखी होगी। कल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बड़ा ही तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है, जिसमें साहब फरमाते हैं कि उनकी मदद पाकिस्तान से फ़रार होने में जनरल राहील ने की थी। मेरा एक बहुत ही सादा सा सवाल है कि इस मुल्क के अंदर जो शीदा मीदा, उनको तो उनके ऊपर तो कानून लागू होता है, लेकिन ताकतवर के ऊपर जो है वो कानून लागू नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जनरल मुशर्रफ हो या वर्दी में मलबूस कोई भी आदमी हो, वो इतना ताकतवर क्यों है? पैसा लूटने के लिए जो बड़े नाम हैं वो ताकतवर हैं, जो छोटी मछली हैं उनको पकड़ा जाता है। तो इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून कब बदलेगा? ऐसा कानून जो कि इंसाफ दे, जो गरीबों के लिए भी हो, जो अमीरों के लिए भी हो, और एक ऐसी रियासत, फलाही रियासत हो जिसके अंदर किसी अमीर गरीब की तमीज़ ना हो। तो क्या जनरल मुशर्रफ को फरार होने में जनरल राहील ने वाकई मदद की थी, या सिर्फ हम नारे लगाते हैं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर है? क्यों दी थी मदद? ये आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इससे पहले तो बस खबरें थी, अफवाहें थी और हम सिर्फ तज्जिए करते थे, लेकिन अब तो जनरल मुशर्रफ ने कह दिया कि अदालतों पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। उन्होंने अदालती निज़ाम पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। इसके साथ साथ वो फरमाते हैं कि हुकूमत के ज़रिए से जो है जनरल राहील ने दबाव डाला, जिसकी बुनियाद पर उनके केसेस विदड्रॉ किए गए। सवाल ये भी है कि चौधरी निसार का बस सिर्फ अयान अली पे चलता है, जनरल मुशर्रफ पे नहीं। और उन्होंने वादा किया था ECL से नाम निकालते हुए कि उनको वापस लाएंगे, वो लाएंगे या नहीं लाएंगे। वज़ीर आज़म हाउस से भी तरदीद हुई है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मामले के ऊपर बात करना, ताकि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनको पता चले कि इंसाफ, कानून, आइन की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई जाती है। आप हमारे साथ रहिएगा। आज न्यूज़ पे 8 बजे हम इस पे बात करेंगे। कमर ज़बान कायरा हमारे साथ होंगे, आरिफ अलवी साहब हमारे साथ होंगे और जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज के दिन की जो बड़ी खबर है वो तो आपने देखी होगी। कल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बड़ा ही तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है जिसमें साहब फरमाते हैं कि उनकी मदद पाकिस्तान से फ़रार होने में जनरल राहील ने की थी। मेरा एक बहुत ही सादा सा सवाल है कि इस मुल्क के अंदर जो शीदा मीदा उनको तो उनके ऊपर तो कानून लागू होता है, लेकिन ताकतवर के ऊपर जो है वो कानून लागू नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जनरल मुशर्रफ हो या वर्दी में मलबूस कोई भी आदमी हो, वो इतना ताकतवर क्यों है? पैसा लूटने के लिए जो बड़े नाम हैं वो ताकतवर हैं, जो छोटी मछली हैं उनको पकड़ा जाता है। तो इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून कब बदलेगा? ऐसा कानून जो कि इंसाफ दे, जो गरीबों के लिए भी हो, जो अमीरों के लिए भी हो, और एक ऐसी रियासत फलाही रियासत हो जिसके अंदर किसी अमीर गरीब की तमीज़ ना हो। तो क्या जनरल मुशर्रफ को फरार होने में जनरल राहील ने वाकई मदद की थी, या सिर्फ हम नारे लगाते हैं कि इस मुल्क के लिए इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर है? क्यों दी थी मदद? ये आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इससे पहले तो बस खबरें थी, अफवाहें थी और हम सिर्फ तज्जिए करते थे, लेकिन अब तो जनरल मुशर्रफ ने कह दिया कि अदालतों पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। उन्होंने अदालती निज़ाम पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। इसके साथ साथ वो फरमाते हैं कि हुकूमत के ज़रिए से जो है जनरल राहील ने दबाव डाला, जिसकी बुनियाद पर उनके केसेस विदड्रॉ किए गए। सवाल ये भी है कि चौधरी निसार का बस सिर्फ अयान अली पे चलता है, जनरल मुशर्रफ पे नहीं। और उन्होंने वादा किया था ECL से नाम निकालते हुए कि उनको वापस लाएंगे। वो लाएंगे या नहीं लाएंगे? वज़ीर आज़म हाउस से भी तरदीद हुई है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मामले के ऊपर बात करना, ताकि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनको पता चले कि इंसाफ, कानून, आइन की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई जाती है। आप हमारे साथ रहिएगा। आज न्यूज़ पे 8 बजे हम इस पे बात करेंगे। कमर ज़बान कायरा हमारे साथ होंगे, आरिफ अलवी साहब हमारे साथ होंगे और जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज के दिन की जो बड़ी खबर है वो तो आपने देखी होगी। कल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बड़ा ही तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है जिसमें साहब फरमाते हैं कि उनकी मदद पाकिस्तान से फ़रार होने में जनरल राहील ने की थी। मेरा एक बहुत ही सादा सा सवाल है कि इस मुल्क के अंदर जो शीदा मीदा उनको तो उनके ऊपर तो कानून लागू होता है, लेकिन ताकतवर के ऊपर जो है वो कानून लागू नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जनरल मुशर्रफ हो या वर्दी में मलबूस कोई भी आदमी हो, वो इतना ताकतवर क्यों है? पैसा लूटने के लिए जो बड़े नाम हैं वो ताकतवर हैं, जो छोटी मछली हैं उनको पकड़ा जाता है। तो इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून कब बदलेगा? ऐसा कानून जो कि इंसाफ दे, जो गरीबों के लिए भी हो, जो अमीरों के लिए भी हो, और एक ऐसी रियासत फलाही रियासत हो जिसके अंदर किसी अमीर गरीब की तमीज़ ना हो। तो क्या जनरल मुशर्रफ को फरार होने में जनरल राहील ने वाकई मदद की थी, या सिर्फ हम नारे लगाते हैं कि इस मुल्क के लिए इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर है? क्यों दी थी मदद? ये आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इससे पहले तो बस खबरें थी, अफवाहें थी और हम सिर्फ तज्जिए करते थे, लेकिन अब तो जनरल मुशर्रफ ने कह दिया कि अदालतों पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। उन्होंने अदालती निज़ाम पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। इसके साथ साथ वो फरमाते हैं कि हुकूमत के ज़रिए से जो है जनरल राहील ने दबाव डाला, जिसकी बुनियाद पर उनके केसेस विदड्रॉ किए गए। सवाल ये भी है कि चौधरी निसार का बस सिर्फ अयान अली पे चलता है, जनरल मुशर्रफ पे नहीं। और उन्होंने वादा किया था ECL से नाम निकालते हुए कि उनको वापस लाएंगे। वो लाएंगे या नहीं लाएंगे? वज़ीर आज़म हाउस से भी तरदीद हुई है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मामले के ऊपर बात करना, ताकि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनको पता चले कि इंसाफ, कानून, आइन की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई जाती है। आप हमारे साथ रहिएगा। आज न्यूज़ पे 8 बजे हम इस पे बात करेंगे। कमर ज़बान कायरा हमारे साथ होंगे, आरिफ अलवी साहब हमारे साथ होंगे और जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज के दिन की जो बड़ी खबर है वो तो आपने देखी होगी। कल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बड़ा ही तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है जिसमें साहब फरमाते हैं कि उनकी मदद पाकिस्तान से फ़रार होने में जनरल राहील ने की थी। मेरा एक बहुत ही सादा सा सवाल है कि इस मुल्क के अंदर जो शीदा मीदा उनको तो उनके ऊपर तो कानून लागू होता है, लेकिन ताकतवर के ऊपर जो है वो कानून लागू नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस।
جنرل مشرف ہوں یا وردی میں ملبوس کوئی بھی آدمی ہو، وہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ پیسہ لوٹنے کے لیے جو بڑے نام ہیں وہ طاقتور